biofuel or biocrude extraction from algal biomass. We know that we get a huge variety of products from algae. Like it can be used as a food supplement, it can be used as an algal oil, it can be used as a biofuel. So, for production of biofuel, not all algae are suitable, but after doing a huge amount of research, strains of algae has been found which contain high lipid content. So, those algae with high lipid content in their biomass are usually cultivated either by open or closed culture. In closed culture, it is usually done in a photobioreactor, and in open culture, it is done in raceway ponds, or it can also be done in the wastewater treatment ponds, where we are integrating two process. That is, we are using the wastewater management, as well as we are using the nutrient from that wastewater to grow our algae. And thus this is a very good amalgamation of two processes, that is wastewater management and biocrude production. So after the algae has been cultured, it is usually harvested. The particular strains that are needed, the particular species of algae that are needed, they are separated from the wild strains, that is purification of algae. And after dewatering and purification in the harvesting process, this process, that is the biocrude extraction, is done. Hello friends, I am Dr. Ayantika Das, and in this video I am going to discuss only about the extraction of biocrude from algal biomass. Earlier, I have made videos on algae as biofuel and the various culture technique of algae, that is in closed PBR as well as in open system, and also the algae harvesting technique, where I discuss not only the harvesting technique but also the dewatering and purification technique. And in this video, I'm going to discuss about the extraction. And though I have in this diagram, we are seeing that only hydrothermal liquefaction is there, but I'll be actually discussing a mechanical process, that is oil expeller process, followed by the solvent extraction. That process, mechanical process and chemical process, with the hydrothermal liquefaction process. These are the actually two main type of techniques that are very commonly used. Lesser known techniques that do not have much acceptance, I'm not discussing in this video. So let's begin the video. Oil expeller method. ये जो ऑयल एक्सपेलर मेथड है एक्चुअली ये काफ़ी कॉमन है. इट इज़ कॉमन वाइल वी आर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम एनी ऑयल सीड प्लांट, या प्लांट जैसे जाथ्रोपा हो गया, या नट्स. इन सभी से अगर जब हम ऑयल निकालते हैं, तो वी आर यूजिंग दिस मशीन, दैट इज द ऑयल एक्सपेलर मेथड. ये जो ऑयल एक्सपेलर है, इससे वी आर एक्चुअली गेटिंग 75% of the algal oil that is present in the biomass of the algae. और रिमेनिंग जो भी ऑयल है, वो हम एक और प्रोसेस से कर लेते हैं, जैसे द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं. तो जो हमारा प्रोसेस है, ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेप है, ये मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ ऑयल एक्सपेलर. And the second will be solvent extraction, which is a chemical process. So दो process है. First one is a दो step process है. First one is a mechanical, and the second one is a chemical process. We actually, what we do is that we culture the algae, आइदर फोटोबायोरिएक्टर में हो सकता है इन ए क्लोज्ड सिस्टम, और अगर ओपन सिस्टम में है तो इट कैन बी अ रेस अवे पॉन्ड या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. सो
उधर से हम एल्गी हार्वेस्ट करके, प्यूरिफाई करके, डी वाटर करके, हम जब जो एल्गल बायोमास मिलता है उसको हम ड्राई करते हैं और उसको हम पाउडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो वो जो पाउडर्ड फॉर्म ऑफ एल्गल बायोमास, दैट वी पुट इट इन दिस चेम्बर। और उसके बाद क्या होता है, एक स्क्रू प्रेस रहता है, और ये स्क्रू के जैसे ही मूव करके इट एक्चुअली जनरेट्स अ फ्रिक्शन। एंड इस फ्रिक्शन के वजह से और हाई प्रेशर के वजह से द टेम्परेचर increases, and this high pressure, friction, high temperature, all these are responsible to squeeze out the oil from the algal biomass. And this process is similar to the process we extract oil from oil seeds or nuts or even vegetables or like that. This process is almost similar. तो हम देख रहे हैं कि ऑयल एक्सपेलर में दो कंपोनेंट मेन है। एक है प्रेशर, जो कि हाई प्रेशर में होता है, और फ्रिक्शन जो एल्गल बायोमास, जो ड्राई एल्गल बायोमास है, और ये जो स्क्रू प्रेस है, इनमें फ्रिक्शन के कारण व्हाट वी आर जनरेटिंग इज हीट. So the pressure and temperature, these are the two components that help in conversion of the actually extraction of the lipid from the biomass. So two component, pressure and heat. So जैसे हाई प्रेशर में होता है और हीट भी हाई होता है। हम लोग एक बाहर से हीट नहीं डालते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के वजह से ही हीट ऑलरेडी जनरेट हो जाता है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर पुटिंग द एल्गल बायोमास, और एल्गल बायोमास इधर से होते आफ्टर अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन एल्गल ऑयल इज जनरेटेड। और ये जो एक्चुअली बैरल है, ये जो बैरल जैसा है, इनमें से छोटे छोटे पोर्स भी रहते हैं। सो ये पोर्स से जो भी लिपिड जनरेट हो रहा है, ये कलेक्ट होके एक कंटेनर में जमा होता है। एक पाइप के, बाय द मीन्स ऑफ ए पाइप, इट इज गेटिंग कलेक्टेड इन ए कंटेनर. So, and the dried algal biomass, उसकी थोड़ा केक फॉर्म में इधर से आके it will come out in the form of small strips of algal biomass or cake. So this is what oil extraction method is. So the algae is harvested from the pond and dried and then put in a screw press. फिर जो स्क्रू प्रेस के जो भी फ्रिक्शन जनरेट होता है, that is providing the heat, and this pressure and heat, that is driving the lipid out of the biomass. और जो लिपिड है वो स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू कलेक्ट होता है। और जो ये जो ग्रीन कलर की जो केक है, दिस कंटेन्स द रेस्ट ऑफ द ऑयल। तो ये जो रेड कलर कंटेनर है, इसमें तो एक्चुअली द 75% ऑफ द ऑयल, जो 75% ऑफ द ऑयल इन द बायोमास इज गेटिंग कलेक्टेड। बट ये जो ड्राइड ग्रीन कलर का जो व्हाट वी से बाय एल्गल बायोमास स्ट्रिप और एल्गल बायोमास की केक निकल रही है, दैट इज ऑल्सो कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ ऑयल। तो आगे देखते हैं। Second is the solvent extraction method. So what we see is that we are seeing that the first step is a mechanical, and the second step is a chemical process. जो मैकेनिकल प्रोसेस था, फर्स्ट प्रोसेस, उसमें सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर की बात हो रही थी. देयर वाज नो केमिकल्स यूज्ड. एज द केमिकल्स वर नॉट यूज्ड, सो देयर इज आल्सो नो कॉस्ट इन्वॉल्व इन रिमूविंग द केमिकल रेसिड्यूज. सो द जो फर्स्ट वाला स्टेप है, मैकेनिकल स्टेप है ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन, दैट इज वेरी चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव. सो बट the chemical second जो है chemical process, that is not that cost effective.
बट ओवरऑल दो प्रोसेस की मिक्सचर जो है, ये दो स्टेप से जो ऑयल एक्सट्रैक्शन निकल रहा है, दैट इज टोटली एनर्जी पॉजिटिव, इट इज इकोनॉमिकल. So this chemical process is actually solvent extraction, जहाँ पे जो भी solvent है, either alcohol और hexane जो भी है, वो solvent की vapor आके algal biomass से वो lipid extract कर लेता है. So this is a basically um, um, a chemical process and chemical dissolution in the vapors of the solvent. एंड जो भी एल्गल जो भी एल्गल ऑयल है, रिमेनिंग एल्गल ऑयल इन द बायोमास, दैट इज गेटिंग कलेक्टेड हियर in this round bottom flask. So let's see the ये जो है ये एक्चुअली दिस इज द डायग्राम ऑफ ए सॉक्सलेट apparatus एंड ये बहुत कॉमन apparatus है लैब में, क्योंकि नॉट ओनली इन एल्गल बायोमास प्रोडक्शन बट ऑल्सो इफ यू वांट टू टेक आउट सर्टेन bioactive compound from any plant or any essential oils, so we can usually do it with this Soxhlet apparatus. So let's see the various structures of a Soxhlet apparatus. ये जो है distillation flask है and इसमें actually the final product ये जमा होता है. और जो हमारा ड्राइड एल्गल बायोमास वो कहाँ रहेगी, यहाँ पर जहाँ पे ग्रीन कलर की ये जो है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे, रैप्ड इन आइदर मसलिन क्लॉथ और फिल्टर पेपर और इवन टिश्यू पेपर. इसको रैप करके फुल्ली कवर करके हम इस सॉक्सलेट apparatus के एक्सट्रैक्टर जो ये है एक्सट्रैक्टर, दिस वन इज द एक्सट्रैक्टर में रख देंगे. फिर जो है ऊपर का जो है ये वाला कंडेंसर. कंडेंसर क्या है, एज अ नेम सजेस्ट, इट विल कूल डाउन. कुछ वेपर अगर है उसको कूल डाउन करेंगे. तो इस कूल डाउन के लिए वी आर यूजिंग वाटर, जो कि इधर से इनलेट होता है, आउटर चेम्बर से होते हुए इधर से आउटलेट हो जाता है. सो इसके बाद हम देखते हैं वी यूज ए फनल टू एक्चुअली जो सॉल्वेंट है इसको हम इधर से डालते हैं. तो सॉल्वेंट विल गो to the go and actually यहाँ पे actually we have started heating. So the solvent will actually get it will the biomass, that is algal biomass, it will actually soak up the all the solvent. तो जो भी थोड़ा थोड़ा करके हम सॉल्वेंट डाल रहे हैं, तो उसको इधर जो एल्गल बायोमास है उसको हम से भिगोएंगे. फिर जो है ऑलरेडी द ड्यू टू हाई टेम्परेचर जो भी सॉल्वेंट है वो एक्चुअली वेपोराइज कर जाता है. तो एज द सॉल्वेंट इज गेटिंग वेपोराइज्ड, इट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट्स द लिपिड कंटेंट फ्रॉम द एल्गल बायोमास. सो जब ये होता है तो जो वेपर है कंटेनिंग द एल्गल बायोमास, ये इधर ही एक्चुअली पहले पहले कलेक्ट होने लगता है, फिर धीरे धीरे आके इधर कलेक्ट होने लगता है. पर ये जो अंदर वाली जो ये वाली है, इसमें अगर जब हम लोग देखेंगे, ये जो एकदम अपर मोस्ट पॉइंट है, ये टिप है द पॉइंट ऑफ रिटर्न. इधर तक आ जाएंगे ना जो लिक्विड, तो क्या होगा, इट विल ग्रेजुअली देन फॉल डाउन टू दिस डिस्टिलेशन फ्लास्क. तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या क्या रहता है, द फाइनल ऑयल और जो वेपर है, जो एसीटोन या सॉरी अल्कोहल या हेक्सेन या कोई भी है, वो वाले जो सॉल्वेंट की जो वेपर है वो इधर से आके फिर से ये इधर आ जाता है और then it moves up and it gets cooled down by the condenser. कंडेंसर में कूलिंग होने के बाद again it will fall back to this extractor region. तो ये कंडेंसर से फिर से एक्सट्रैक्टर में, मतलब इधर से फिर से इधर आ गया है, एंड द प्रोसेस विल रिपीट. सो हम देखते हैं.
जो भी आइदर एल्गल केक फ्रॉम द एक्सट्रैक्टर और डायरेक्टली पॉन्ड से भी उठा के हम उसको ड्राई करके इधर डाल रहे हैं सॉक्सलेट apparatus की एक्सट्रैक्टर में। तो एक्सट्रैक्टर में क्या हो रहा है, वेपर जो है वो डिसॉल्व करना है लिक्विड सॉरी लिपिड कंटेंट को, जो भी ऑयल कंटेंट है। सो एक बार ऑयल निकल गया तो इट विल बी गेटिंग कलेक्टेड इन दिस डिस्टिलेशन फ्लास्क, दिस वन हियर, डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में कलेक्ट होगा और वेपर चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाके फिर से कंडेंसर में ठंडा होके फिर से आ जाएगा एल्गल, ये जो एक्सट्रैक्टर में इधर आ जाएगा। So this process is going on repeating and until all the oil content is removed. So हम देख रहे हैं, this is a schematic diagram. हम देख रहे हैं एक्चुअली प्रोसेस में क्या हो रहा था। सो द एल्गल बायोमास, इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में डाल रहे हैं। सो जो है लिपिड कंटेंट वो क्या हो रहा है, सॉल्वेंट में आ रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये सॉल्वेंट प्लस द लिपिड कंटेंट, और जो रेसिड्यू रह रहा है दैट इज इन द एक्सट्रैक्टर। सॉक्सलेट apparatus की जो एक्सट्रैक्टर थी उनमें देखा था ना ग्रीन कलर की जो वो है, सो दैट इज द दैट ग्रीन कलर्ड रेसिड्यू इज द ड्राइड मास लेफ्ट बिहाइंड। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन मीन्स द लिक्विड पोर्शन दैट इज कलेक्टेड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, डिस्टिलेशन जो फ्लास्क थी ना एट द वेरी एंड ऑफ द सॉक्सलेट apparatus। सो वो जो डिस्टिलेशन वाला फ्लक्स में जो लिक्विड था, दैट लिक्विड इज द solvent, that is solvent dissolved lipid। तो अब जो भी जितना भी थोड़ा बहुत सॉल्वेंट है उसको लिपिड से कैसे जो एल्गल लिपिड से कैसे हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, वी कैन डू इट बाय यूजिंग वाटर। वी नो दैट वाटर क्या है, जो भी फैट है, लिपिड है, वो क्या है, वाटर के ऊपर ही रहता है। सो ये अगर अपना ऑयल कंटेंट है और ये है वाटर, सॉरी ये है वाटर, तो इसके ऊपर ही रहेगा। तो वंस ये जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है जिनमें थोड़ा बहुत सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन या इथानॉल रह गया है, तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, वी आर यूजिंग इट यूजिंग वाटर। वाटर से क्या होता है कि जो भी वाटर में ये सॉल्वेंट है ये डिसॉल्व हो गया एंड द ऑयल ऑयल इज इन द अपर पोर्शन। सो इस ऑयल को हम निकाल सकते हैं। ये रहेगा बायोक्रूड, बायोक्रूड 2। एंड अब देखते हैं कि जो बायोक्रूड 2 निकल गया है एंड जो बायोमास एल्गल बायोमास ऑलरेडी सॉलिड बायोमास रह गया है, उसको हम सेकंड सेकंड प्रोसेस फिर से करेंगे। ये वाला जो प्रोसेस एंटायर प्रोसेस है इसको हम फिर से करेंगे, करते रहेंगे रिपीट प्रोसेस जब तक कि पूरा ऑयल ना निकल जाए। हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन, अब ये जो प्रोसेस है हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन, ये एक नेचर में भी होता है। जैसे एक फर्न की लेयर है, दूसरी फर्न की फर्स्ट वाली फर्न की लेयर जब इट ग्रो ओल्ड एंड डाइड, देन देयर विल बी अनदर लेयर ऑफ फर्न एंड अनदर लेयर ऑफ फर्न। सो ऐसे होता है कि इन दिस वे मेनी लेयर ऑफ फर्न ग्रू एंड ग्रेजुअली एक लेयर दर लेयर ये जब हो रहा है, तो जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला जो लेयर है, तो दैट इज गेटिंग प्रेशर फ्रॉम ऑल द लेयर्स अबव इट। इसकी वजह से क्या है, इट इज गेटिंग ए हाई प्रेशर, और प्रेशर जब हाई है तब इसकी टेम्परेचर भी बढ़ने लगती है। तो ये सारे प्रोसेस में कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हो रहा था, जहाँ जब फर्न बहुत अबंडेंट थे, तो ये जो प्रोसेस में जो कार्बन जो हाइड्रोकार्बन है इनमें से एक प्रोसेस हो रहा था कि अंडर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर उनमें से ऑक्सीजन निकल रहा था। दैट इज अ प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। व्हेन हाइड्रोकार्बन चेन से हम ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। सो
ये जो प्रोसेस नेचुरली हो रहा है, इसकी वजह से जो क्रैकिंग वाला प्रोसेस हो रहा है, इसकी वजह से वी आर गेटिंग गैस, दैट इज से नेचुरल गैस, उनमें एक्चुअली मीथेन, हाइड्रोजन, ये सारे हैं। देन वी आर गेटिंग ए क्रूड ऑयल, जिसमें क्या है, जो क्रूड ऑयल को हम एक्चुअली व्हेन वी आर फ्रैक्शनली डिस्टिलेटिंग इट, तो हमको क्या मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, we are also getting kerosene, and all these fractions by fractional distillation of crude oil we are getting these fraction. So एक crude oil मिल रहा है, और मिल रहा है क्या, certain organic matter in liquid phase, और क्या मिल रहा है, एक सॉलिड मिल रहा है जो कि कोल। सो ये नेचुरल प्रोसेस में हाइड्रोथर्मल लिक्विफेक्शन जो हो रहा है, इसमें हम गैस मिल रहा है हमको, क्रूड ऑयल मिल रहा है हमको, ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है हमको, और कोल मिल रहा है। सो ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ हाइड्रोथर्मल लिक्विफेक्शन, जिसको हम क्या किया, आर्टिफिशियली वी कैन ऑल्सो डू इट। Generally, any biomass, for example any plant, say for example जात्रोपा की plant है, या seed oil rich seeds, जैसे सोयाबीन हो गया, and groundnut. So all these various type of biomass that is rich in lipid content, उसको क्या करते हैं हम, उसको हम जनरली 250 टू 550 डिग्री सी टेम्परेचर में, और 5 टू से 25 डिग्री 25 मेगापास्कल प्रेशर में, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर रखेंगे फॉर से 20 टू 60 मिनट्स, तो क्या होगा, ये हाइड्रोथर्मल लिक्विफेक्शन हो जाएगा। एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट वी विल बी, these are the products that will be getting out of hydrothermal liquefaction। पर क्योंकि हम we are using the algae, जैसे क्लोरेला हो गया, सिनस डेस्मोस, we don't need that much high temperature, high pressure। हम कर सकते हैं 280 to 420 डिग्री सी, और 10 to 25 मेगापास्कल, एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस ये सब को, और थोड़ा कैटलिस्ट भी यूज करेंगे, क्योंकि इफ यू आर नॉट यूजिंग द कैटलिस्ट, देन लिपिड कंटेंट जो है दैट विल बी रिड्यूस्ड। सो जनरली सोडियम कार्बोनेट जो है, सबसे अच्छा कैटलिस्ट है सोडियम कार्बोनेट, जो है सबसे अच्छा कैटलिस्ट बाय फॉर कन्वर्टिंग इन दिस हाइड्रोथर्मल लिक्विफेक्शन। देन उसके बाद जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, उसकी एक्टिविटी थोड़ा कम है सोडियम कार्बोनेट से, लेकिन फिर भी बिना कैटलिस्ट के यूज करने से ये तो काफी ज्यादा अच्छा है टाइटेनियम ऑक्साइड। देन सबसे कम कैटलिस्टिक एक्टिविटी है कैल्शियम ऑक्साइड की। सो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी ऐसी है। सो हम देख रहे हैं कि कैटलिस्ट, in presence of catalyst at this particular temperature, this pressure and absence of oxygen for some 40 minutes, 40 minutes अगर हम रखते हैं इसको, then we are getting the desired product। प्रोडक्ट क्या क्या है, अब उसके पहले हम देख लेते हैं जो एल्गल बायोमास है, जिसको हम रख रहे हैं, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैटलिस्ट, ये जो चारों क्राइटेरिया है, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एंड द एल्गल बायोमास फॉर 40 मिनट्स। तो वो एल्गल जो बायोमास है, दैट शुड बी वेट बायोमास। जो हम पहले वाला प्रोसेस में यूज कर रहे थे, दैट इज द ऑयल एक्सपेलर मेथड, उनमें हम एक्चुअली यूज करते हैं ड्राइड एल्गल बायोमास, बट यहाँ वी आर यूजिंग वेट एल्गल बायोमास। सो द वेट एल्गल बायोमास after hydrothermal liquefaction will produce the desired product। अब जो एल्गल बायोमास है, which strain of algae it will be used, वैसा स्ट्रेन यूज करना चाहिए जिसकी जो कार्बन कंटेंट है वो 70% या उससे ज्यादा हो, और जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो 4 से 6 तक होना ही चाहिए। इसके कम भी होगा तो अच्छा है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है
वो अगर ऑयल में आ जाता है तो when it will get burned it will produce toxic gases, we know that. So the nitrogen content of that algae will should be low. मतलब प्रोटीनेशियस जो एल्गी को हम एज ए फूड यूज करते हैं वैसे वाला एल्गी नहीं चलेगा, क्योंकि वी यूज एल्गी एज अ फूड सप्लीमेंट, दोज एल्गी जिसकी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम होगी, लिपिड कंटेंट कम होगी, सॉरी लिपिड कंटेंट कम होगी, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा, और प्रोटीन कंटेंट ज्यादा, तो दैट इज यूज्ड एज फूड. बट हियर दोज एल्गी विल बी यूज्ड जिसकी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा, प्रोटीन कंटेंट कम होगी. So that is the algae for our study. So after this hydrothermal liquefaction, first product we are obtaining is the gases, which is a mixture of gas, that is nitrogen, protein से जो आता है. Then oxygen, we know that by this process of cracking, oxygen is liberated. Then we are getting methane and hydrogen. जो methane है, it's a greenhouse gas, and we are not leaving it as such. We will be separately separating it from hydrogen, and we'll be using it for other industrial process. But जो hydrogen है, it is a very efficient fuel. So hydrogen is a most important thing among all the gases that we are obtaining here. Then जो है गैसियस फेज के अलावा भी हम हमारे पास एक सॉलिड लिक्विड फेज है. सॉलिड और लिक्विड फेज में, सॉलिड फेज में क्या है, जो एल्गल बायोमास, रेसिडुअल बायोमास है, और जो लिक्विड फेज में है वो है ए मिक्सचर ऑफ बायोक्रूड ऑयल एंड वेरियस ऑर्गेनिक मैटर. अब इनमें we are going to separate the solid and liquid phase. How we are going to do it is by vacuum filtration. So vacuum filtration is basically a filtration using a vacuum, जिससे एक एक्स्ट्रा पाइप डाल के वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं, जाके जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा जल्दी भी हो जाए और वेरी प्रेसिशन भी रहे. तो दिस वे सॉलिड फेज इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड फेज. अब लिक्विड फेज में क्या है, ऑयल है और ऑर्गेनिक मैटर. सो जो ऑयल है उसको हम ऑर्गेनिक मैटर से सेपरेट करने के लिए क्या किया, ईथर में डिसॉल्व कर दिया था. अब ईथर में डिसॉल्व हो गया ऑयल, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको निकाल सकते हैं हम. फिर ऑर्गेनिक मैटर को निकालने के बाद जो ऑयल है that is dissolved in ether, that is again separated. ऑयल को हम कैसे सेपरेट कर लेंगे, बाय इवापोरेशन और सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस से ईथर को सेपरेट कर लेंगे ऑयल से. और ये जो ऑयल हमने निकाला ये है बायोक्रूड 1. फिर फिर जो अपना जो सॉलिड फेज है, सॉलिड जो था उसमें भी थोड़ा बहुत ऑयल रह गया है. मेजोरिटी जो है बायोक्रूड 1 में ही निकल गया है. तो फर्स्ट ये जो लिक्विड फेज में ऑयल है वो मैक्सिमम ऑयल है, लेकिन सॉलिड फेज में भी थोड़ा बहुत ऑयल रह गया है. अब उसको हम क्या किए, एसीटोन से हमने उसको डिसॉल्व किए. एसीटोन में ऑयल डिसॉल्व हो गया तो सॉलिड फेज रह गया. तो सॉलिड फेज को हम वी हैव सेपरेटेड, एंड देन जो एसीटोन है दैट इज डिसॉल्व्ड इन लिपिड, वो एसीटोन को हमने क्या किया, हमने थोड़ा वाटर डाल दिया. तो सबसे एक्चुअली सबसे ऊपर जो है जो सॉलिड है उसमें एसीटोन डाल दिया, तो क्या हो गया, एक ये वाला लेयर है एसीटोन और लिपिड का, और ये रहेगा सॉलिड. तो इसमें हम अगर वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, ऊपर रह जाएगा वाटर, सॉरी ऊपर रह जाएगा ऑयल, नीचे रह जाएगा वाटर, और एकदम नीचे रह जाएगा वो सॉलिड. अब वाटर और जो एसीटोन है वो तो रह गया, ऑयल को हमने निकाल लिया. सो हमने क्या किया, इवापोरेट कर दिया वाटर एंड एसीटोन, it is getting evaporated and oil is obtained. So this is the actually the and it is also the biocrude oil. और ये जो biocrude oil है ये actually एक mixture of oil है जिसको हम क्या करेंगे, fractionation, by fractional distillation
we are going to separate. Let's see, this is the schematic diagram. What we are seeing, that hydrothermal liquefaction से gas निकल गए, that is the nitrogen, that is the oxygen, that is methane, and what we have hydrogen. So फिर गैस निकल गया तो लिक्विड एंड सॉलिड फेज है. सॉलिड फेज जो है, सॉलिड फेज लिक्विड फेज को हम बाय डिस्टिलेशन वी आर एक्चुअली रिमूविंग. जो सॉलिड फेज रह जाएगा नीचे, और हम डिस्टिल करके क्या ले लेंगे, बाय सॉरी सॉरी वैक्यूम, जो फिल्ट्रेशन करके हम लिक्विड फेज को हम निकाल लेते हैं. अब जो लिक्विड फेज है उसमें ईथर, उसमें ऑयल है, ऑयल है, और क्या है, और है ऑर्गेनिक मैटर. सो हमने क्या किया, ईथर डाल दिया, ऑयल डिसॉल्व हो गई, ऑर्गेनिक मैटर को बाहर निकाल लिया. फिर क्या किया, जो ईथर और ऑयल को कैसे सेपरेट करेंगे, अगेन बाय यूजिंग वाटर. कैसे, लेयर हो जाएगी. सबसे अगर वाटर यूज करेंगे, सबसे ऊपर वाला ऑयल वाला लेयर हो जाएगा, और जो नीचे वाला जो लेयर है, जिसको हम येलो से करेंगे, ये वाला लेयर है, इसमें वाटर और ईथर है. तो हम अगर इवापोरेट करेंगे, वाटर एंड ईथर विल इवापोरेट एंड द ऑयल विल बी लेफ्ट. फिर देखते हैं सॉलिड फेज में. दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग दैट आई हैव बीन डिस्कसिंग अर्लियर इन दैट स्लाइड. सो जो सॉलिड रह जाएगा वो है बायोचार. एसीटोन से हम इसका जो ऑयल है वो निकाल लेंगे. फिर जो है एसीटोन से निकाल लेने के बाद जो है एसीटोन को इवापोरेट करके हम बायोक्रूड फिर से निकाल लेते हैं. मतलब एसीटोन सॉलिड से, सॉलिड में एसीटोन डाल के ऑयल को निकाल लिए. अब एसीटोन से ऑयल को सेपरेट कैसे करेंगे, बाय इवापोरेशन. सो दिस इज बेसिकली द सेम प्रोसेस. ये दोनों ही सेम प्रोसेस है. इसमें हम सॉक्सलेट एपरेटर्स यूज कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे हैं. सो ये सारे कुछ यूनिवर्सिटीज है दैट हैव बीन एक्टिवली डूइंग रिसर्च ऑन दिस एल्गल बायो फ्यूल. So that was all from my side. If anybody is doing research on this and you know some more important facts, I'd request you to write your information in the comment section. And if you have any other doubts also or queries regarding this video, please write it in the comment section. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and also to subscribe. And thanks again for watching this video. And I do make videos on biology, botany based topics, and also on the CSIR net and set question paper also I do solve. And I have all put all those things in separate playlists. And you can go to my channel and watch those videos. Thanks again for watching this video.